Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will discuss about the overlapping of the orbitals. So this figure represents the positive, negative and zero overlap of s and p atomic orbitals. Already we had discussed about the s and p orbitals, that s is spherical and p is dumbbell. And we know about d also, that d is double like this, and there are many types of d: xy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. So we will discuss about s and p orbitals. So now you can understand that for sigma overlap means positive, okay, positive or in phase overlap, there is positive and negative lobes, okay, means this is p orbital, there is positive and negative sign in different lobes. So positive or in phase overlap, we can understand that positive will overlap each other, and there is overlapped part that will represent that sigma bond. Already we had discussed about that sigma and pi bond. So it is in z axis, so it is pz, okay. Next is, if in z axis there is both p pz, then there is one positive and one negative will get overlapped, then there is no bonding, so it is called negative or out of phase overlap, okay, in phase and out of phase. So we should know that for bonding there should be overlapping of positive lobes of orbitals. In s and p, we know that s is spherical and pz's positive overlap will get overlapped, then there is positive or in phase overlap, and in negative or out of phase overlap there is positive and negative, then this is not bonding, okay, this is not in bonding condition. In another one, we know that in this direction x axis there is px and px, if positive overlap will overlap together, then there is bonding, and if it is in opposite sign, then there is negative or out of phase overlap. So all of you have to draw these structures in that way, okay. You can use shade of the pencil, okay, पेंसिल से आप शेड करके भी बना सकते हैं, इसे कलर करने की ज़रूरत नहीं है, बट हल्का सा शेड आप कर सकते हैं, ओके। एक में शेड कर दीजिएगा, दूसरे को वाइट रहने दीजिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में। और यहाँ देखिए ये है पॉजिटिव ओवरलैपिंग किस में हो रही है, पी वाई। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पी जेड जो होता है वो इस एक्सिस पे होता है, एक ऐसी एक्सिस होती है, सॉरी, ऐसी एक्सिस होती है और एक ऐसी एक्सिस होती है। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ओके। So if this py will overlap in positive and negative, then there is no bonding, so it is also called negative or out of phase. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दो ऐसे बना हुआ है, ये पॉजिटिव वाले हैं और ये निगेटिव वाले हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट ज़ीरो ओवरलैप, ये ज़ीरो ओवरलैप का क्या मतलब है, जब पॉजिटिव में भी उतना ही ओवरलैप हो रहा है और निगेटिव में भी, तो यहाँ पर दोनों मिलाकर क्या होगा, इक्वल, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पर माना जाएगा ज़ीरो ओवरलैपिंग, ओके। रिजल्टेंट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दूसरे एक्सिस में पॉजिटिव ओवरलैप है, यानी ये एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस में है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स वाले के सिर्फ एक्स वाले से ही ओवरलैपिंग हो सकती है। इसको 3D में जब आप समझेंगे तो आपको पता है कि ये इस एक्सिस में है, तो ये z ऐसे होता है, ठीक है, और y ऐसे होता है, तो कभी भी x वाला y वाले से ओवरलैप नहीं होगा, या z वाला x या y वाले से नहीं होगा, z वाला z से ही ओवरलैप कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे कहेंगे ज़ीरो ओवरलैप। क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ फेज ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उसका जो 3D में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच, यानी वो डिफरेंट है, ओके। So we will discuss about some other points also, okay students. So we will continue with
एग्जाम्पल BCl3 मॉलिक्यूल। इसमें देखिए ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाया गया है। इसमें आपको दिख रहा है ये एक्स और जेड एक्सेस हैं। ओके, इनमें आपको दिखाया गया BCl3 का, हमने पहले BF3 का भी पढ़ चुके हैं हम, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी sp2, और sp2 में इसका बॉन्ड एंगल क्या होता था 120 एंड इट्स शेप इज़ प्लानर। तो देखिए यहाँ पर बोरॉन की बात करें अगर हम, तो हाइब्रिडाइजेशन में आपने डेफिनेशन पहले ही पढ़ लिया था। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, और जो न्यू सेट रेडी होता है आफ्टर में इंटरमिक्सिंग वो क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, उनके नंबर्स सेम होते हैं, हमेशा नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम रहते हैं, और उनकी एनर्जी जो होती है स्टार्टिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है, स्लाइटली डिफर कर सकती है वो, और फिर कंबाइन होने के बाद, इंटरमिक्स होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, सेम एनर्जी के हो जाते हैं। ये डिफरेंस है। ओके, डेफिनेशन को समझने के साथ साथ याद भी रखना है आपको कि स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्सिंग के बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम रहते हैं, बट उनकी एनर्जी इंटरमिक्सिंग के बाद सेम हो जाती है। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमेशा स्टार्टिंग में भी और बाद में भी सेम रहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बोरॉन में 3 ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं ये। ओके, पॉजिटिव ओवरलैप होगा, यहाँ पर पॉजिटिव लोब्स हैं इसके, और क्लोरीन के यहाँ पर हैं Cl के 3 पॉजिटिव लोब्स, इनके पॉजिटिव वाले से ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पर सिग्मा सिग्मा बॉन्ड दिखाया गया है, और इस पॉजिटिव लोब के अदर साइड में, अपोजिट साइड में क्या होगा, निगेटिव लोब्स भी होंगे। देखिए 3 छोटे छोटे निगेटिव, छोटे बनाने का मतलब है कि वो क्या है, दूर है आपसे, फार अपार्ट। मतलब आप जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं इधर ये पॉजिटिव वाला है, और उसके अपोजिट साइड में वो छोटे छोटे दिखा रहे हैं कि वो दूर है आपसे, इस वजह से उसका साइज़ स्मॉलर बनाया जाता है इसे। ठीक है, यहाँ भी बना हुआ है देखिए ब्लैक छोटे छोटे, और यहाँ पर भी इसके लिए इक्वल बनाया गया है कि ये इस साइड में है, तो इसे हम बोलते हैं प्लानर शेप। ठीक है, एक ही प्लेन में ये होते हैं इस वजह से। ओके, इसमें वाई डायरेक्शन में यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी वाई में शो नहीं किया, एक्स वाई शो किया और जेड। ओके, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, एस पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल्स ये मिक्स हो रहे हैं। तो इंटरमिक्सिंग के बाद यहाँ पर न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स रेडी हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ओके, कैसे आता है ये, BCl3 में बोरॉन आपको लेना है 5 1s2 फॉर रिवीजन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, 1s2 2s2 एंड 2p1। आउटर मोस्ट शेल इज 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ वैकेंसी कितनी चाहिए, 3 क्लोरीन को आना है, तो यहाँ पर हम वैकेंसी क्रिएट कराएंगे इसे एक्साइटेड करके। इट इज़ ग्राउंड स्टेट एंड इट इज़ एक्साइटेड स्टेट, सो देयर इज़ एक्साइटमेंट इन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो था वो एक्साइटेड होके यहाँ आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो अब 3 वैकेंसी क्रिएट हो गई, तीनों क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 एंड 3। ओके, तो इसमें ऑर्बिटल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, 1s एंड p के 2, इसलिए ये है sp2। ओके, सो sp2 hybridization। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल ऑफ यू हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर्स। डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको इसकी पिक सेंड करनी है, इसलिए इसको अच्छे से डायग्राम बनाकर सेंड करिएगा आप। ओके, ये दोनों जो पहले पढ़ाया गया और जो अभी बताया गया। ओके, और अपनी तरफ से आप एक और स्ट्रक्चर ऑर्बिटल डायग्राम का बनाइएगा। ओके, तो पॉजिटिव निगेटिव एंड ज़ीरो ओवरलैप वो डायग्राम एक BCl3 का, और एक आपको अपनी तरफ से बनाना है। ओके, एक या एक से ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, तो आप बना लेंगे, और उसके पिक्स आपको सेंड करना है। ओके, थैंक यू।